Good morning, everybody. So today we are going to start with our next chapter of book 2 of your class 12 political science. The chapter is parties and party system in India. Now basically this is the new addition to your book. It is a new chapter in your syllabus, and this chapter has replaced the restoration of Congress system in India. That chapter, it has been replaced by this chapter, that is parties and party system in India. Now regarding the restoration of Congress system, some part of that topic is included in this chapter, rest part is deleted of this chapter. And second chapter of your book, that is era of one party dominance, even some portion from that chapter has been picked up and it is put up in this chapter. Even that chapter is deleted in the syllabus, but some topic from that area is picked up and it is being added in parties and party system in India. Well, basically, so this becomes chapter 4 of your syllabus of your new book. Now new books, they are not published this year, but if new books are published before your exams, then you can compare the topic of this chapter with the video which I'm sharing, because no, CBSE has not provided any content regarding this chapter. So with the discussion with other teachers and all, we have tried to collaborate the material of this chapter and I'm giving you. So we don't have any idea that when the books will be coming in the market, then what different contents would be there in the book, but we have tried to cover up each and everything regarding the parties and party system in India. So well, let us start with this chapter. Well, starting with this chapter, first of all we'll be doing what are political parties. Now all those who have done class 10th in CBSE board, we have chapter on political parties in our political science book of class 10, in which we did meaning of political parties, then its components, then we did the functions of political party, then how many types of parties are there, then what is the criteria to be a national and a state political party. Apart from that, we did some national political parties also. Fine. So we will be including all those things in this topic also, in today's topic also, because we are doing party system. So we need to do the recapitulation and we need to do the basic things regarding the political parties. So if you feel like, you can do this topic from your class 10th book also if you are having that book. So let us start. What are political parties? Now basically you have done this topic, so I will be giving just a brief of that. A political party, it is basically a group of people, the people who have same kind of ideology regarding the working of the government, regarding the working of the country. So those people, they come together, they form their group, they name their group, and what is their main aim? To contest the elections, and after contesting the election, to hold the power in their hand, to hold the power in the government. Fine. Now this group, which we call political party, they have certain basic policies and programs for the society, in which they claim the society that they are working for promoting the collective good. What does it mean? कि उनके कुछ plans और policies होते हैं society के लिए, जिसमें वो सोसाइटी को मीन्स ये बताते हैं कि वो दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी बेसिकली. बट इनका मेन एम क्या होता है? बेसिकली द मेन एम इज़ द contesting of elections and holding power in the government, and they are obliged to serve the society. Obliged means उनको करना पड़ती है, उनको सोसाइटी को सर्व करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अगर वो सोसाइटी को सर्व नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में वो कभी नहीं जीतेंगे. सो दैट इज़ वाई दे प्रमोट द कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी. Next we come to the components of political party. Now a political party, it has 3 components we did last year. एक तो हर political party का leader होता है, ठीक है. दूसरा, हर political party के कुछ active members होते हैं who take part in every meeting of that political party, जो आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं. एंड तीसरा, फॉलोअर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ फॉलोअर्स, जैसे मैं हूँ, आप हो, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है बेसिकली.
चेंज भी होता रहता है, आज मैं बीजेपी के साथ हूँ, कल मैं कांग्रेस के साथ हूँ, परसों मैं किसी और पार्टी के साथ हूँ. सो दिस फॉलोअर्स दे कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेज, अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिमांड्स. सो दैट इज हाउ वी हैव द 3 components of political parties. Now next we come to the functions of political parties. Again this is a topic from your class 10th, that the main function, first function is that these political parties they contest the elections में लड़ते हैं पावर को अपने हाथ में लेने के लिए. Second is these parties they put forward different plans and policies, means अलग अलग जो भी मतलब जिस चीज़ को लेके अपना एक क्राइटेरिया रखते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं तो ये पॉलिसीज़ हैं हमारे, ये प्रोग्राम्स है विच वी विल बी गिविंग टू द पीपल. सो पुट फॉरवर्ड मीन्स लोगों के आगे अपनी प्लान्स और पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स रखते हैं, दैट आफ्टर विनिंग और आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट दे विल बी गिविंग दीज थिंग्स टू द पीपल, टू द पब्लिक. थर्ड इज मेकिंग लॉज. नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट हाउ द लॉज आर बीइंग मेड. ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट में हमारे लॉज कैसे बनते हैं. सो उन लॉज को बनाने के लिए किसकी वोटिंग चाहिए होती है, एमपीज, दैट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड दोज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे बिलोंग टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टी. Then fourth one, form and run the government. So this form and run the government, it is in context with first point only, parties contest election किस लिए लड़ते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट बना सकें और पावर अपने हाथ में ले सकें, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें. Then next one, play the role of opposition. Now you know there are number of political parties. Either one party gets the majority, या मिलजुल के गवर्नमेंट बन जाती है. ठीक है, जिसको हम गठबंधन कह देते हैं, अलायंस कह देते हैं या कोलिशन कहते हैं. सो दिस अलायंस और कोलिशन इज फॉर्म बाय नंबर ऑफ पार्टीज, बट जो पार्टीज बच जाती हैं दे फॉर्म द अपोजिशन पार्टीज. और एक हमारी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी होती है बेसिकली. जैसे अगर बीजेपी का प्रेजेंट रूल चल रहा है तो कांग्रेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन पार्टी. देन नेक्स्ट वन, पार्टीज दे शेप पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप करते हैं. नाउ व्हाट पीपल वांट, वो आगे कैसे आएगा, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए, वो आगे कैसे आएगा. तो वो हम अपने व्यूज़, अपनी डिमांड्स, अपने विशेष पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट पार्टीज़ जो हमारे एरिया में एग्जिस्ट करती हैं उनके आगे हम रखते हैं, और वो फिर हमारे जो ओपिनियंस होते हैं वो आगे पार्लियामेंट तक लेके जाती हैं. एंड द लास्ट वन इज़ parties they provide access to government machinery and welfare scheme implemented by government. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लिंक है, वो बीच की कड़ी है. किसके बीच में, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में खड़ी हैं पॉलिटिकल पार्टीज. जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू वो स्कीम्स हमें मिलती हैं. हमें जो चाहिए हम पॉलिटिकल पार्टी को बताते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी वो चीज़ें आगे गवर्नमेंट के आगे रखती है. सो दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज दे एक्ट एज द लिंक. सो दीज आर बेसिकली 7 functions of the political parties, which of course you people have already done in class 10. So the next topic is party system in India. अब इंडिया में कौन सा पार्टी का सिस्टम है. वी हैव यू नो वन पार्टी सिस्टम, वी हैव बाई पार्टी सिस्टम, देन वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम ऑल्सो. सो इंडिया में कौन सा सिस्टम है, तो किस कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम है जहाँ डेमोक्रेसी है. बेसिकली वो चीज़ डिपेंड करती है कंट्री के लोगों के ऊपर, कंट्री की डाइवर्सिटी के ऊपर, कंट्री के लोगों की थिंकिंग के ऊपर, इन सब चीज़ों पे, टाइप ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है. तो यू नो इंडिया इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. हर चीज़ में इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चर में, लैंग्वेजेस में, रिलीजन में, फाइन. तो जिसकी वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बेसिकली, फाइन. तो जिसकी वजह से हमारा जब व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स तो उसके बाद तो यू नो इंडिया वाज बेसिकली वन पार्टी सिस्टम, फाइन. Now that chapter, you know, era of one party dominance or Congress dominance, although it is not in your syllabus this year, but Congress dominated India for number of years. फिर उसके बाद सम सेज कि इंडिया इज़ 2 पार्टी सिस्टम, कि यहाँ तो कांग्रेस बनती है यहाँ बीजेपी बनती है. ठीक है, कि 2 ही पार्टीज़ ज़्यादा आगे आती हैं. बट नाउ इफ़ वी टॉक 1990s के बाद की बात करें, देन इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे है, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़
और किसी पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो छोटी पार्टीज़ को या स्टेट पार्टीज़ को अपने साथ मिला के अपनी मेजॉरिटी शो करता है एंड देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट बेसिकली अलायंस या कोलिशन से फॉर्म होती है, तो जिसकी वजह से वी कैन से कि नंबर ऑफ पार्टीज दे फॉर्म द गवर्नमेंट विच मेक्स इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम। Now India has multi-party system where political parties are classified as national, state और regional level parties। अब हमारे इंडिया में दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या तो पार्टी क्लासिफाइड है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं, मतलब एक रीजन की पार्टी। ओके, सो ये कौन डिसाइड करता है कि पार्टी नेशनल है या स्टेट लेवल पार्टी है? सो इट इज़ नो गिवन दिस डेजिग्नेशन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसी जिसको हम बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन ही ये मतलब पार्टीज़ को अकॉर्ड करता है कि वेदर अ पार्टी इज़ अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी, और ये इस अपने डिसीज़न को जो इलेक्शन कमीशन इट कीप्स ऑन रिव्यूइंग, थोड़े सालों बाद वो चेक करता रहता है कि कौन सी न्यू पार्टी है जो नेशनल पार्टी बन रही है या कौन सी नेशनल पार्टीज़ में से निकल के स्टेट की लिस्ट में जा रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ऑल द पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। नाउ कोई भी पार्टी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकती हूँ, एनीबडी कैन मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, बट उस पॉलिटिकल पार्टी को हमें इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। ओनली देन वी कैन वर्क लीगली इन द सिस्टम, तभी हम अच्छे से काम कर सकते हैं अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर रजिस्टर्ड पार्टी है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Now when you get your party registered with the election commission of India, तो उस वक्त क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन है वो आपकी पार्टी को एक यूनिक सिंबल देता है। यूनिक सिंबल मीन्स वो सिंबल जो आगे पहले कभी किसी पार्टी को नहीं दिया, जिसको आप इलेक्शन सिंबल भी बोलते हो। सो अ स्पेशल यूनिक सिंबल इज़ गिवन टू द रजिस्टर्ड पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन। और जो अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से हमने ये उठाया है, तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग टोटल पार्टीज़ जो रजिस्टर्ड हैं वो हैं 2598 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, जिसमें से 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, 52 स्टेट पार्टीज़ डिक्लेयर्ड हैं, और बाकी 2538 दैट इज़ 2538 पार्टीज़ आर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। ना तो वो स्टेट पार्टी की लिस्ट में आए, ना वो नेशनल पार्टी की लिस्ट में आए। नाउ हाउ वी कम टू नो कि एक पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है? अब जस्ट सी दिस डेटा केयरफुली, इस डेटा को आप लोग ध्यान से देखो। नाउ यू सी कि इसमें 2598 थी टोटल, 8 होगी नेशनल पार्टी, 52 होगी स्टेट पार्टी, बाकी की पार्टी ना इस कैटेगरी में है, दैट इज नेशनल पार्टी की कैटेगरी में भी नहीं है और स्टेट पार्टी की कैटेगरी में भी नहीं है, तो उनको हम बोल देते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। सो दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट एंड नेशनल पार्टीज, एंड रेस्ट अदर पार्टीज, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड हर पार्टी को होना पड़ता है, बट कुछ पार्टीज नेशनल बन जाती है, कुछ स्टेट बन जाती है, और बाकी की सारी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बन जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वी हैव द मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। Now let us come to which party becomes the national party. I told you we have 8 national parties. Now which party becomes the national party? We have 3 criteria for this. National party means we have 3 points, and if a party has to become a national party, then any of these 3 criteria could be fulfilled. इन तीनों में से कोई भी criteria, अगर एक भी criteria fulfill हो रहा है, then that party becomes the national party. Now let us see what is that criteria. So first one is it has to win minimum of 2% of seats in Lok Sabha from at least 3 different states. Means कि लोक सभा की कितनी सीट्स है हमारी 543, उसकी 2% रफली हमारा आएगा आउट ऑफ 543 मीन्स 11 सीट्स। ठीक है, तो 11 सीट्स एक पार्टी को, सीट्स मीन्स नंबर ऑफ एमपीज़ कितने होने चाहिए लोकसभा में, 11 कम से कम एमपीज़ होने चाहिए उस पार्टी के फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। अब ये नहीं कि वो 11 एमपीज़ तो हैं बट सारे के सारे यूपी से हैं, या सारे के सारे यू कैन से किसी और महाराष्ट्र से निकल रहे हैं। 3 अलग अलग स्टेट से उस पार्टी के एमपीज़ होने चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, पार्टी मस्ट मैनेज टू विन 6% ऑफ वोट्स। अब वोट्स और सीट्स में डिफरेंस है। यू रिमेंबर FTPT सिस्टम एंड PR सिस्टम। वोट्स मीन्स जो लोग वोटिंग कर रहे हैं, और सीट्स मीन्स सीट्स इन लोकसभा, बेसिकली दैट इज नंबर ऑफ MPs। सो जनरल इलेक्शन में जितनी एलिजिबल वोट्स है लोकसभा के लिए, जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग में से अगर 6% वोट्स एक पॉलिटिकल पार्टी को गए हैं एंड 4 MPs बने हैं, देन इवन दैट पार्टी कैन बिकम अ नेशनल पार्टी। और थर्ड, अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा, थर्ड क्राइटेरिया ये भी है कि पार्टी अगर स्टेट लेवल पार्टी डिक्लेयर्ड है। अब स्टेट लेवल के लिए भी हमारा क्राइटेरिया है विच वी विल बी डूइंग इन फर्दर स्लाइड्स। तो अगर स्टेट लेवल पार्टी है, वो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले लो कांग्रेस को स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है बहुत सारी स्टेट्स में, मींस 4 से ज़्यादा स्टेट में। तो 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में अगर एक पार्टी स्टेट लेवल पार्टी है, तो इवन दैट पार्टी कैन बिकम अ नेशनल पार्टी। सो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया रिगार्डिंग नेशनल पार्टी। 3 क्राइटेरियाज है, तीनों में से कोई भी अगर फुलफिल हो जाता है तो वो पार्टी बन जाएगी नेशनल पार्टी। सो टुडे प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, हमारे पास 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया में, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है, BJP है, देन BSP, CPI, CPIM, NCP, AITC, NPP। सो ये 8 हमारी नेशनल पार्टीज़ है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दीज आर आर 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली। ठीक है, सो फर्स्ट वन, सी जो हैंड वाला सिंबल है, दिस वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। A.O. ह्यूम ने 1885 में फॉर्म की थी। ये है BJP, भारतीय जनता पार्टी। इसकी जो पेरेंट पार्टी है दैट वाज भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो उसमें से ये 1980 में ये पार्टी निकली है, भारतीय जनता पार्टी। अब इनके जो आइडियोलॉजीज हैं या इनके जो एम्स है दैट यू हैव डन इन क्लास दिस 10th ऑफ कोर्स। देन थर्ड वी हैव NCP, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी को फॉर्म किया था शरद पवार ने। ठीक है, और ये पार्टी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। NCP का आपने इन दिनों काफ़ी नाम सुना होगा। ये पार्टी कांग्रेस से स्प्लिट हुई है, कांग्रेस से अलग हुई है। और अलग क्यों हुई थी? ये पार्टी के अलग होने का रीज़न ये रहा कि कांग्रेस की जब हेड प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बनाई गई, तो शरद पवार ने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था कि इटालियन सिटीज़न हमारी कांग्रेस का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। तो शरद पवार को पार्टी से निकाल दिया गया था। सो शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी बना ली, दैट इज़ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP। महाराष्ट्र में इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसके बाद थोड़े टाइम बाद इनके कांग्रेस के साथ जो क्लैशेस थे वो भी ठीक हो गए, वो ख़त्म हो गए। और अब ये पार्टी जब कोलिशन में आती है तो हमेशा कांग्रेस को ही सपोर्ट देती है। नेक्स्ट वी हैव AITC, दैट इज़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी की जो हेड है वो है ममता बनर्जी। ठीक है, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी भी बेसिकली पहले कांग्रेस में थी। कांग्रेस के बहुत सारे स्प्लिट्स हैं, बहुत सारे स्प्लिट्स मीन्स आप इंडिया में जितनी पार्टीज़ देखोगे ना, उनमें से जो मैक्सिमम पार्टीज़ हैं वो कांग्रेस में से ही निकली हुई हैं। पेरेंट पार्टी उनकी कांग्रेस ही थी। फाइन। सो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हेड इज़ ममता बनर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और ममता बनर्जी ने ये अपनी पार्टी फॉर्म की और बड़ा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिया CPI को वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बहुत सालों से CPI रूल कर रही थी, बट फिर 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी दैट इज़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीती वहाँ पे। और अब ममता बनर्जी सेकेंड टर्म के लिए शी हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब सेकेंड टाइम शी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। Then next we come to CPI. CPI का although you know it was formed in 1925 में फॉर्म हुई थी। दिस पार्टी CPI ओनली। सो 1925 में फॉर्म हुई थी। इनकी आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, मीन्स वर्कर्स के राइट्स के लिए वर्कर्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बट इसमें से ये CPIM स्प्लिट हो गई 1964 में। कब? जब 1964 में USSR एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया। यू नो
दोनों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और ये पार्टी की आइडियोलॉजी भी कम्युनिज्म है। तो उन दोनों में स्प्लिट आया, तो जो लोग चाइना को फेवर कर रहे थे वो आगे CPIM में, और जो USSR को कर रहे थे वो रह गए CPI में। बट इस पार्टी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड अब हो चुका है वेस्ट बंगाल एरिया में, देन असम एरिया में, वहाँ पे त्रिपुरा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है CPI, मतलब CPI से ज़्यादा फॉलोअर्स आज CPIM के हैं। CPIM में भी स्प्लिट आया, ठीक है, बट वो नेशनल पार्टी नहीं बन पाई। जो स्प्लिट आया वो CPIMM है, फाइन, MN, सो दैट इज़ नॉट बिकम अ नेशनल पार्टी, वो स्टेट पार्टी है वहाँ की। देन नेक्स्ट वी कम टू BSP, दैट इज़ बहुजन समाज पार्टी, जिसका पॉलिटिकल सिंबल है ये एलिफेंट। बहुजन क्या होता है? मेजॉरिटी। अब ये पार्टी किसने स्टार्ट की थी? कांशीराम, जिनकी ये सोच थी कि जो हमारी सोसाइटी के जो ज़्यादातर लोग हैं, मेजॉरिटी है, वो लोअर क्लास पीपल, दलित्स वगैरह है, अंडर डिप्रेस पीपल है, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए BSP दैट इज़ बहुजन समाज पार्टी बनाई गई थी। और आज जो इसकी प्रेजेंट लीडर हैं शी इज़ मायावती, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, काफ़ी बार गवर्नमेंट भी फॉर्म कर चुके हैं वो उत्तर प्रदेश में। ओके, एंड द लेटेस्ट सबसे नई पार्टी दैट इज़ NPP, ये पार्टी न्यू पार्टी है बिल्कुल, मेघालय में फॉर्म हुई, PA संगमा ने ये फॉर्म की है, और ये लास्ट ईयर ही नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनी है, ठीक है। अब NPP का क्या है बेसिकली? PA संगमा कौन थे? PA संगमा NCP के मेंबर थे इस पार्टी के, वो शरद पवार के साथ थे। बट NCP फिर PA संगमा ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शंस में ही वॉज नॉमिनेटेड, वो खड़े हुए, तो NCP ने उनको बोला कि आप इलेक्शंस ना लड़ो, आप वापस ले लो अपना, मतलब वहाँ से यू शुड नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शंस, बट वो नहीं माने और वो उन्होंने इलेक्शंस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। He contested the elections and finally बाद में उन्होंने ये अपनी पार्टी बना ली, दैट इज़ NPP इन मेघालय। मेघालय में ये पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और लास्ट ईयर 2019 में सबसे न्यू पार्टी बन गई है, दैट इज़ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये 1 मार्क में आ सकता है कि सबसे लेटेस्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो दैट इज़ NPP फ्रॉम मेघालय। ओके, सो दीज आर आर 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज विच यू पीपल आर सपोज टू डू। इनकी आइडियोलॉजी, इनका लीडर कौन है, इनके पॉलिटिकल सिंबल क्या है, ये 1 मार्क्स वगैरह में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू आर नीड टू सपोज टू डू दिस। सो नेक्स्ट वी कम टू स्टेट पार्टी। अब जैसे हमने नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया किया है, ऐसे ही स्टेट पार्टी को का रिकॉग्निशन मिलने के लिए वी हैव अ क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया क्या है? अ पार्टी हैज़ टू विन एटलीस्ट 3 सीट्स और 3% ऑफ सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट में जो वोटिंग होती है स्टेट की इलेक्शंस के लिए, उसमें या तो 3 MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या टोटल वोट में से 3%, टोटल सीट्स में से जितनी भी सीट्स हैं उस स्टेट की 3% सीट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है, इन अ पर्टिकुलर इलेक्शन, जब जनरल लोकसभा इलेक्शन होते हैं, द पार्टी हैज़ टू बैग एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स। तो उस पार्टी को टोटल 6% वोट्स मिले एंड 1 लोकसभा सीट एंड 2 असेंबली सीट्स भी, उसको स्टेट असेंबली मतलब स्टेट में 2 सीट्स हों उस टाइम, और लोकसभा की 1 सीट, दैट इज़ 1 MP शुड बी फ्रॉम दैट पार्टी। एंड थर्ड वन, अगर ये दोनों क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाती है कोई पार्टी, तीसरा भी है। तीसरा क्या है? द status of state party can still be bestowed upon an entity even if it fails to win any seats in Lok Sabha or Assembly if it manages to win at least 8% of total votes cast in the entire state। जब लोकसभा या असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में चाहे कोई सीट नहीं भी मिली, ठीक है, बट 8% वोट्स, चाहे अगर लोकसभा के इलेक्शंस है तो 8% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स ऑफ कंप्लीट इंडिया, और अगर स्टेट की इलेक्शन है पूरे स्टेट में से 8% वोट्स अगर एक पार्टी को मिल जाते हैं, तो देन मतलब कोई MP या MLA ना भी बना हो, देन इवन दैट पार्टी कैन बिकम द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया, दैट इज़ फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो पार्टी बन जाती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। सो you see we have done the criteria for national party also and we have done the criteria for state party also, कैसे पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी और कैसे पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी।
So let us do some of the state political parties. Although you know we have 28 state parties, but it is not possible to sorry, not 28 52 state parties, but it is not possible to do all those parties in detail. So what you are supposed to do, you are supposed to do the party state, that in which party this in which state the party is prevalent, what is the political symbol of that party, and who is the present leader. So basically first one, if we talk of Aam Aadmi Party, आप, तो इट इज़ प्रेवलेंट इन दिल्ली एंड पंजाब, ये भी एक स्टेट पार्टी है, ठीक है। दिल्ली और पंजाब में इसको स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है, और इसके जो प्रेजेंट हेड हैं, ही इज़ ऑल ऑफ यू नो अरविंद केजरीवाल, एंड दिस ब्रूम, झाड़ू, उनका पॉलिटिकल सिंबल है, ओके। और ये पार्टी एक मूवमेंट के बाद बनी थी, आपको पता है अन्ना हज़ारे की मूवमेंट हुई थी एंटी करप्शन, उस मूवमेंट के बाद ये पार्टी बनी थी। नेक्स्ट इज AIADMK, जयललिता का नेम आप सबने सुना हुआ है, ठीक है। तो जयललिता, शी वॉज अ हेड ऑफ दिस पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्र कझगम। तो ये तमिलनाडु में ये पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जयललिता इज़ द यू कैन से शी वॉज द लीडर ऑफ दिस पार्टी। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, दिस इज़ ऑल्सो द स्टेट पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल। हम लोग सारी स्टेट पार्टीज नहीं कर रहे, हम लोग जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके बारे में कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादे मुस्लिमीन, AIMIM, दैट इज़ इट इज़ इन तेलंगाना। ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, ये पार्टी काफ़ी फेमस है ये पार्टी, एंड द पॉलिटिकल सिंबल इज काइट। देन वी हैव AGP, असम गण परिषद, ठीक है। तो ये भी पार्टी असम में है, एलिफेंट इज़ द सिंबल। और ये पार्टी बेसिकली ये भी मूवमेंट के बाद बनी थी, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन थी, उन्होंने रिवोल्ट्स वगैरह किए थे अपने स्टेट को बचाने के लिए, कि बाहर वाले उनकी स्टेट में ना आए और उनका कल्चर उससे इफेक्ट होता है। तो उसके बाद उन्होंने ये अपनी पार्टी बना ली, दैट इज़ असम गण परिषद, और ये काफ़ी बार पावर में भी आई है असम में। द नेक्स्ट इज बीजू जनता दल, BJD, दैट इज इन उड़ीसा। नवीन पटनायक का आप सबने नेम सुना होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। सो दिस पार्टी इज द strongest party of Orissa. Then we have DMK, Dravida Munnetra Kazhagam. Now these are the two most important parties of Tamil Nadu. Karunanidhi इसके लीडर थे DMK के, ठीक है, और इसके जयललिता। सो दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टीज ऑफ तमिलनाडु। आपको पता है तमिलनाडु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया, तो उसकी ये दोनों पार्टीज दे हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर देयर। सो नेक्स्ट वी हैव इनेलो, दैट इज़ इंडियन नेशनल लोकदल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट पार्टी है हरियाणा की, चौटाला फैमिली में, बेसिकली चौटाला ही इज़ द हेड ऑफ दिस एंड द फाउंडर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। देन आफ्टर दैट नेशनल कांग्रेस NC, जिसको हम जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस भी बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला ही इज़ द हेड ऑफ दिस पार्टी एंड लीडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। देन JDU, that is Janata Dal United, it is in Bihar, presently the ruling party of Bihar. This party is the ruling party of Bihar and it is also very strong in that area. Then after that Jharkhand Mukti Morcha, JMM, a very strong party of central India, that is JMM. देन महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, ये नई बनी है, अभी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है और महाराष्ट्र में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन RJD, दैट इज़ राष्ट्रीय जनता दल। अब ये पहले RJD थी, उसके बाद ये नई बनी जनता दल, ठीक है। तो बेसिकली जो RJD है, RJD के जो लीडर है दैट इज़ लालू प्रसाद यादव, ये लालू प्रसाद यादव ने ही बनाई थी, ओके। देन बिहार में और झारखंड में इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, फाइन। सो RJD इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस बिहार, बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बिहार की दैट इज़ जनता दल, JDU, जिसके हेड है नीतीश कुमार। एंड देन लास्ट वन वी हैव समाजवादी पार्टी। दिस पार्टी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बेसिकली इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हमने एक और पार्टी की थी BSP,
मायावती वाली, ठीक है, और दूसरी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इज़ द प्रेजेंट हेड ऑफ दिस पार्टी। सो दीज आर द फ्यू पॉलिटिकल स्टेट पार्टीज विच वी हैव डन। हम लोग सारी यहाँ पे डिटेल में नहीं कर सकते एंड वी डोंट नो कि ये पूरी डिटेल में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, बट फिर भी इट इज़ आ रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू दैट जितनी भी हमारी स्टेट पार्टीज़ हैं बेसिकली यू आर सपोज टू डू ऑल दो स्टेट पार्टीज़। उनके लीडर कौन है, वो किस किस स्टेट में प्रेवलेंट है, 1 मार्क्स में ये काफ़ी अच्छे से आ सकता है। ओके, सो ओवर हेयर आई फिनिश अप विद द बेसिक व्यू ऑफ द चैप्टर पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम। का जो बेस है वो मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज़ क्या है, पार्टीज़ के फंक्शंस क्या है, पार्टी सिस्टम इंडिया में कौन सा है, हमारी कौन सी नेशनल पार्टीज़ है, स्टेट पार्टीज़ कितनी है हमारी। तो ये सारी चीज़ें आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर बेसिकली। बाकी जब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट मैं करूँगी, इन दैट वी विल बी डूइंग द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत साल इंडिया में राज किया है, ठीक है। तो वी विल बी डूइंग द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। सो विद दिस आई फिनिश अप विद दिस video. Next we'll proceed in the our next video.